pivotal healthcare provider, patient safety is our primary concern. Securing IV line is the most common interventional procedures in the daily routine life. It is not only for the insertion of medication, but also it is a life-saving measure. I invite Mr. Afsar Ali to highlight on the importance of IV cannulation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप आवाज़ आ रही है सबको? As you people are the future nurses, you are potential nurses, and today the concept of IV cannulation that you are going to learn about is really very important. As you people know, when you visit your clinical placement as nurses, you play so many roles, but I think every one of you must have experienced care of the IV cannula. You might have practiced insertion of IV cannula. You might have practiced uh, uh, infusion of IV drips, medication, and so many things. So, among the so many important roles, one is the care and management of IV site at the clinical area. If you people see this IV cannula and such care is not only important at your hospital. I will share my experience with you, like you people, when you go back to your communities, your homes, people there expect a lot from you people. Anytime in your surroundings, if there is um, some casualty, some needs, they will call you. They expect from you people that you are able to help them to give medication. So in your communities, you will need such thing. So it is very much important for you, and you people are lucky that you have got this opportunity to learn about intravenous cannulation. Uh, I hope that after this session, you get some good hands-on skill, learn it, and be able to have good competency in it. So good luck for your workshop, and thank you, Ms. Kausar. To highlight the importance of IV medication and procedures of IV cannulation, I would like to present a presentation in front of you that you can enhance your competencies in IV cannulation. So the objective of these presentations can be definition of IV cannula, explain aims IV cannulation, identify indications and purpose of procedure, discuss the advantages of IV cannulation, demonstrate the antiseptic non-touch technique, pre, during and post procedure client of care of the client, enlist the complication of IV cannulation and its prevention. How we can define a IV cannula? Cannula is a tube that can be inserted into the body for the delivery or removal of the fluid and for the gathering of samples. And aims of IV cannulation is the aim of intravenous management is safe, effective delivery of treatment without discomfort or tissue damage and without
compromising venous access, especially if long-term therapy is proposed. Anybody can tell me what is venous access? How this can be compromised? Okay, well, when we will prick a lot of time with the syringe, with the needle, we cannot give a lot of medication through a needle or a syringe. So we can patent the IV cannulation for this purpose. Indications can be fluid and electrolyte replacement, administration of medicine, administration of blood and blood products. Products can be fresh frozen plasma, platelets and white blood cells. Administration of total parenteral nutrition, hemodynamic monitoring and blood sampling. So dear audience, these are the indications where we need IV cannulization and patent IV line. Advantages are immediate effect, control over the rate of administration. Patient cannot tolerate drugs or fluid orally. Some drugs cannot be absorbed by another route. Pain and irritation is avoided compared to some substance when given subcutaneous and intramuscular. How that can be? The immediate effect can be, what are the immediate effect? How can we take immediate effect of medication while we have a patent cannula? Okay. Immediate effect. When you receive the patient in ER with a heart attack, you are giving a medication that give immediate effects to the heart to pump and to start pumping the blood. Okay. Okay, what equipments we use for this procedure? Dressing tray with antiseptic, non-touch technique, non-sterile gloves, apron, clean wipes, gauze swabs, IV cannula or tourniquet, dressing to secure cannula, alcohol wipes, saline flush and sterile syringe or fluid to be administered, and shop bins. Why we need shop bins here? Blood infected needles wastage. For preparation of the procedure, consult with the patient. Greet the patient. Hello, how are you, dear so and so. Give explanation. You will explain the procedure to the patients. Gain consent. Position the patient appropriately and identify the non-dominant hand or arm. Support arm on below or in other suitable manners. Check for any contraindications like infection, damaged tissues, AV fistula. What is AV fistula? एटियो venous fistula. और ये हम क्यों बनाते हैं? Dialysis purpose. Well, first of all, you will find out the vein and select the vein or encourage venous filling by correctly applying the tourniquet. A tourniquet should be applied to the patient's upper arm. The tourniquet should be applied at a pressure which is high enough to impede venous distensions but not to restrict arterial flow. In this, there is a point कि आपने venous flow को आपने block करना है, but you will not impede the arterial line. Opening and closing the wrist, lowering the limb below the heart. Anybody can revise this with actions? वेन डोमिनेंट हो जाए. Okay, well, how we can identify suitable veins? We can identify suitable veins because when we need appropriate anatomy of the structure of circulatory system. Okay, we have, sorry, these are metacarpal veins
on the hand and basilic vein here, and other one is the dorsal venous. ठीक है, these are the veins that are prominent on the hand to pass the IV cannula. Here when we go on the arm, there is a this one cephalic vein and basilic vein are here prominent for IV cannulation. Okay, anybody can tell what are the good sign of good vein? Well and prominent, very good. Straight line. Well, okay. The vein should be bouncy and soft. ठीक है, prominent होगी, soft होगी. Above previous side refills, when depressed visible, has a large lumen, well supported, straight, easily palpable, and then, and what can we should what when we are choosing the vein, what we should avoid? Thrombus, sclerosed and fibrous veins. These are the veins we cannot prick easily. Inflamed and bruised, thin and fragile, mobile, near bony prominence, areas of site of infection, edema, phlebitis, have undergone multiple previous punctures and do not use if patient has IV fluid in situation. Okay. हमने क्यों इन चीज़ों को अवॉइड करना है? बिकॉज अगर हम इन चीज़ों को, अगर हम थ्रम्बस वेन ऑलरेडी थ्रम्बस है और उसके साथ हमने उसको पंक्चर किया तो वहाँ से क्लॉट जो है वो पास थ्रू इन द सर्कुलेशन और वो हार्ट ब्लॉक कर सकता है. स्क्लीरोस जो है उनको उन वेन्स में वैसे ही स्टिकी होता है और IV कैनुला जो है वो पास थ्रू नहीं हो सकता. इन्फ्लेम्ड और ब्रूज जो है वो बिकॉज हमने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट नहीं करने. थिन और फ्रेजाइल, हमारे जिनका बोर जो है वो कम होगा, हमारा IV कैनुला जो है उसमें इजीली पास थ्रू नहीं होगा और वेन को रप्चर कर देगा. नियर बॉनी प्रोमिनेंस जो है उनको हम अवॉइड करेंगे क्योंकि जब वो जॉइंट से मूव करते हैं पेशेंट तो उनका फ्लूइड जो है वो ब्लॉक हो सकता है. व्हाट आर द प्रोसीजर? अब हम देखेंगे कि हम जो IV कैनुलेशन का प्रोसीजर है हमने उसको नॉन टच टेक्निक के साथ किस तरह से प्रोसीड करना है. Wash hands preparing equipments with ANTT. Remove the cannula from the packing and check all parts are operational. Loosen the white cap and gently replace it. Apply tourniquet. Identify vein. Clean the side over the vein with alcohol swab. Allow to dry. These are the things, these are the main basic things we have to do for that purpose. Remove tourniquet if not able to proceed. अगर आपने एक दफ़ा टूर्निकेट अप्लाई किया है एंड यू आर नॉट प्रोसीडिंग वेल, आप लोगों ने जो वेन है प्रोमिनेंट नहीं हुई, आपको वेन की जजमेंट अच्छी नहीं मिली, तो यू कैन चेंज. पुट ऑन नॉन स्टेराइल ग्लव्स. Reapply the tourniquet 7 to 10 centimeters above side. Remove the protective sleeve from the needle, taking care not to touch it at any time. Hold the cannula in your dominant hand. Stretch the skin over the vein to anchor the vein with your non-dominant hand and do not repalpate the vein. जब आपने पार्ट ऑफ द हैंड और पार्ट ऑफ द लिम्ब आपने उसको स्टीराइल कर लिया है तो देन यू विल नॉट टच इट अगेन. Insert the needle bevel side up at an angle of 10 to 30 degree to the skin and this will depend on vein depth. Observe for blood in the flashback chamber. अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये नीचे पता है कि जो वाइट है इसके साथ एक चैम्बर लगा हुआ है. जब हमारा प्रिक बिल्कुल सही होता है तो इस चैम्बर के अंदर खुद ब खुद से ब्लड हमें विजिबल होता है, तो इट्स मीन कि हमारा जो कैनुला है वो सही जगह पे पास हो चुका है. Lower the cannula slightly to ensure it enters the lumen and does not puncture exterior wall of the vessel.
Gently advance the cannula over the needle whilst withdrawing the guide, noting secondary flashback along the cannula. रिलीज़ द टूर्निकेट. जब आपने पूरा प्रोसेस कर लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने रिलीज़ कर लिया टूर्निकेट को और आपने उससे पहले उसका स्टिलेट रिमूव करके ऑफ कर लिया. अप्लाई जेंटल प्रेशर ओवर द वेन बियॉन्ड द कैनुला टिप. रिमूव द वाइट कैप फ्रॉम द नीडल. अब जिस तरह से ये पास कर रहे हैं कैनुला, इन्होंने स्टिलेट रिमूव कर लिया. स्टिलेट रिमूव करने के बाद वही वाइट कैप जो है इस कैनुला के साथ वो अटैच कर देंगे. रिमूव द नीडल फ्रॉम द कैनुला एंड डिस्पोज ऑफ इट इनटू अ शार्प कंटेनर. अटैच द वाइट लॉक कैप. सिक्योर द कैनुला विद एन appropriate dressing. Flush the cannula with 2 to 5 ml normal saline. Attach an IV giving set and fluid. इन दिस टाइम अगर आपके पास पेशेंट है, उसको आपने कैनुला लगाया है और जस्ट फॉर 8 आर्ली और BD इंजेक्शंस आपने इंजेक्टेबल हैं आपके पास, वो आपने मेडिकेशन करनी है, तो यू कैन जस्ट चेक इट विद द 2 to 5 ml नॉर्मल सेलाइन. और अदरवाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द IV fluid or any medication that is given 100 ml or 250 ml, you will attach IV line with it. Finally, document the procedures including date, time, site or size of the cannula. Any problem you encounter, you can write down on the paper. Some hospitals have already the performer that you fill for the IV cannulation, but others are mostly are not. Then you can write down on the paper or history sheet. Thanks the patient for compromising and clean up, dispose of the rubbish. Possible complication can be arise while we are during the procedures, after the procedure, and for long term when we are connecting the patient with IV cannulations. Microorganism into the bloodstream. These organisms can cause serious infection if they are allowed to enter and proliferate in IV cannula, insertion site and IV fluid. अब इन्फेक्शन जो है वो थ्री टाइम्स की या 3 वेज से बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो सकता है. इफ़ वी ओपन द IV कैनुला बिफोर द टाइम एंड कीप इट इन environment where the organisms are already present, or insertion site, if insertion site is not clean or wiped with alcoholic swab, then that can be arise. And IV fluids, if IV fluids are contaminated before. IV site infection does not produce much pus or inflammation at the IV site, and this is most common. Cannula related infections may be the most difficult to identify. IV site infections like IV site infections इस तरह से होंगे कि पेशेंट आपको कंप्लेन करेंगे कि उनको वहाँ पे पेन हो रही है, बट वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन साइन जो है वो नज़र नहीं आ रहे. सेलुलाइटिस, वार्म, रेड एंड ऑफन टेंडर skin surrounding the site of cannula insertion, and pus is rarely detectable. In this way we can see cellulitis site, and where the if you will touch this site, the temperature of this site will be high and tenderness of the surrounding area will be present. Infiltration, infusion leaks into the surrounding tissues. Tissue necrosis could occur. Resite cannula immediately. Infiltration, what can be the infiltration? If the fluid leak into the subcutaneous tissues, that tissue can be damaged or sclerosis can be occur. Thrombolism, thrombophlebitis occur when a small clot becomes detached from the sheath of the cannula. Nursing intervention we can give in this time. Flush cannula regularly and consider reseating the cannula if in prolonged use. Extravasation, the accidental administration of IV drug into the surrounding tissue. Which one drug? The drugs that have osmolarity solutions leakage and chemotherapy agents as well. Bruising, failed and placement. IV, when we failed placement of the IV cannula, particularly in the elderly and those anticoagulant therapy. Air embolism,
Air enters the influent lines. Although this is very rare, prevention, we can take some preventive measures. Make sure all lines are well primed prior to use and connections are secure. Hematoma can be occur and blood leak out of the influent side. The cannula has penetrated through the other side of the vessel wall. Nursing intervention, apply pressure to the side for approximately 4 to 10 minutes and elevate the limb. Phlebitis, thrombophlebitis is common in the IV therapy and it is an inflammation of the vein, redness and pain at the site of infusion. How we can prevent this? Aseptic insertion technique, smallest gauge cannula, secure the cannula properly, regular check of the infusion site. Thrombophlebitis जो है, this is most common complication that can be avoided. कैसे? हम अगर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे उससे हम कर सकते हैं, हमने बोर जो है कैनुला का वो अकॉर्डिंग टू द वेन सेलेक्ट करना है एंड देन हम उसको अगर कैनुला जो पास किया हुआ है उसको रेगुलरली हम फ्लश बैक कर रहे हैं तो इससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज. ओके, सबकी पार्टिसिपेशन हो. नेक्स्ट पॉजिटिवली देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लिटरेचर को केयरफुली स्टडी करेंगे और लिसन करेंगे, ठीक है. देन यू विल मेक अ ब्रिज टू द प्रैक्टिकल लाइफ. ओके, फॉर दिस पॉइंट मिस बुशरा एंड मिस्टर तोकीर इज कमिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर. प्लीज. इसमें से करना ये तो सर सिर्फ कैमरे वालों को ऑडियो सुनाई देगी. अच्छा चले. अच्छा एक मिनट. कैन यू हियर मी प्लीज? ऑडियंस कैन हियर मी? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. ओके, नहीं आ रही. हेलो. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. Me and Ma'am Bushra will continue with the demonstration of IV cannulation. So before continuing to come to the point of these demonstrations on video, and then later on we will come to hands-on practice on IV use. Okay. So before coming to this IV cannulation, I want to elaborate some important critical points during the procedures, before the, during and after the procedures. So as you know that the IV cannulation is a critical skills, we call it as a higher motor skills, clinical skills. In higher motor skills, you know that you not only need to be expert in skills, but you need to have very sound knowledge in evidence-based practices. So when the point comes towards the evidence-based practices, we know that we have to follow some standard operating procedures, which can be, you can see that this kind of SOPs usually are very standardized, and we are applied in different organizations like JCI and also certified organizations. So from time to time, you will see that a lot of research is coming out with from time to time about IV cannulation. So in the recent practices, if you go into some IV cannulations, different organizations like infection control policies like CDCs, you will come to know about different IV cannulation related infection control policies is. We know that about the hygiene, we know about the hardwood. So, my sound is breaking or something, or is it okay? You can hear? Is it breaking? Is it okay? You can hear? Okay. Is it okay?
Okay, thanks for noticing. Okay, so ISO की जो practices हैं या JCI की जो practices हैं उसमें the most important things regarding the IV cannulation is the infection control. Then the second point is very important. I'm telling you some critical points that how to select the patient's vein and not to traumatize the patient, because sometimes it happens that being as a nurse, because why we have studied this skill, because you know that you are at student levels, you are not at much experts, and you don't have daily exposure to get IV cannulation skills at bedside. So this is an opportunity for you people to learn some tips and some tricks, because this can help you in the future. So one important point is that if you do not know, if you do not feel comfort even though, don't go for the IV cannulation straight away if somebody asks you to, okay, go and I'm gonna do IV cannulation, unless and until you feel comfortable. Okay, because here in Pakistan, I have noticed that in different clinical areas that people are trying actually, even the doctors actually, they are making practices actually. They come very first moment, rather than going through the process of teaching and learning and skills, all that process, they straight away go and they start making practices about the patient, and they start making them traumatized. So this is ethically very wrong. Okay, so this is a kind of training, hands-on practices workshop for you. That's why we have selected for you. So we come to the topic because the time is running short. So some of the important points might be during the demonstration. I will illustrate and I will do with the demonstration. I will show you. Okay, no need to worry about that. So coming towards this IV cannulation demonstration video. एक टाइम में एक मिनट ना, एक ये मिनट बोलेगा। ओहो, एक मिनट। अच्छा, इसको इसको हाई अप कर सकते हैं साउंड को, थोड़ा सा हाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। बोलेंगे एक टाइम में एक ओ यार मेरे पॉइंट कुछ बताना है ना साथ, मुझे पता है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये कहाँ स्टॉप कहाँ से होता है इसमें? मुझे पता नहीं। Acha, with the dual assistance of this, Rashid will assist me. When the point will come, any critical point will come, I will ask him to stop, and I will make a point of, I will clarify that point. Okay. So first point, because the sound might be possible कि जो backbenchers हैं, they might be not able to listen clearly. So first step is before going towards the patient is the what we say is patient general observation and assessment. You will go, of course, before going towards the procedure, we will have an interaction with the patient. So we will observe generally, physically observe the patients, how patient's age, on which area, and what is the purpose of actually you are going to insert IV cannulation. Either it's for blood, emergency situations, you are going to insert. So the selection of cannula based on different criteria. One of the criteria क्या है जी? Patient age. Of course, according to patient age, you will select either pediatrics or for adult. Second, for what purpose actually you are going to do? Either it's an emergency based, resuscitation based, you might need to transfuse some kinds of colloidal based solutions like blood, plasma, FFPs, fresh fusion plasmas, or crystalloids like normal salines or other, and time duration. And the fourth one is that during resuscitations or some kind of any kind of other diagnostic purposes, you are going to insert this. Okay, IV cannulation. So selections of IV cannulation depends upon these some criteria. Okay, and least criteria is that is our expertise. You know, sometimes what happen, हमारी कोशिश क्या होती है कि हमें वो वेन चाहिए, खास तौर पे medial cubital vein, because this is one of the most favorite things, something to insert and get the blood samples or even insert cannula. So हमारी पहली कोशिश क्या होती है जी, medial cubital vein ले लो. But latest practices, when I was doing practices abroad like in Malaysia or Saudi Arabia, so dorsal venous arch actually is not recommended in some JCI organization. Latest coming up guidelines says that because like carpal tunnel syndrome, it causes metacarpal syndrome as well.
because it is very, you know that you might have noticed that with the passage of time, with the age, you might have noticed कि जो स्किन की सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर लूज होता है वो आपके ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि द स्किन बिकम्स वेरी पेपरी, पेपर लाइक दैट, टेम्परेचर प्रेशर्स गेट लूज, स्किन बिकम वेरी सॉफ्ट, ओके, ये एज के साथ होता है ना. और सेम्स बोल द अंडरलाइन टिश्यूज, बिकॉज यहाँ पे अंडरलाइन टिश्यू सबकुटेनियस मैस इज वेरी 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 फ्यू, सबकुटेनियस मैस फैट मैस होता नहीं है. तो व्हाट यू डू कि वेन इसलिए यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है. और वेयर एज जो कि आपकी ये एंटी फोर आर्म है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि वुमेन में इवन और आम पर्सन में भी आपने देखा होगा सबकुटेनियस मैस नीचे ज़्यादा होता है. तो दैट्स वाई इट्स वेरी पल्पी समथिंग. तो यहाँ पे इंजर्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, डोर्सल वीनस आर्च अराउंड योर दिस वन मेटाकार्पल एरियाज, ठीक है, आपकी मीडियम टू मिडल वेन, ठीक है. तो ये हमारी मोस्ट फेवरेट होती हैं, ठीक है. लेकिन इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि यहाँ वो एरिया आपने चूज़ नहीं करना जो एंगल जो बोन का जॉइंट एरिया है. नेवर एवर चूज लाइक दिस वन मीडियन फोसा अराउंड दिस योर थंब. इसको आप ऐसे करते हैं ना तो ये एक नीचे फोसा सा बन जाता है. सम टाइम पीपल स्टूडेंट्स ट्राई टू इंसर्ट फ्रॉम हेयर, और ये फिर क्या है, दिस इज़ एन एंगल जॉइंट एरिया एक्चुअली. तो जॉइंट एरिया को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लेटर ऑन एक तो जॉइंट एरिया, ठीक है, जॉइंट एरिया पे डालने के बाद क्या होगी कि आप किंग हो जाएंगी, तो ब्लड फ्लो जाना या आईवी फ्लो जाना कंटिन्यू नहीं रहेगा. तो यू नीड, आपको माइट भी कि आपको चाहिए होगा कि एवरी टाइम आपको उसकी पोजीशन को मेंटेन करना होगा. तो इन एरियाज को भी खास कंसिडर रखना होता है. चलिए स्टार्ट ऑन. लॉजिकली भी आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज इनसाइड एक्चुअली गोइंग ऑन. जब हम प्रेस करते हैं या किसी को टच करते हैं स्किन के ऊपर, व्हाट डज अंडरलाइन इन द एपिथेलियम ऑफ वीनस, क्या चीज़ होती है जो ट्रिगर करती है और वेन से डायलेट होती हैं. यस प्लीज. ओके, वन इज द एंडोथेलियम, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो विकास रिसेप्टर्स होती हैं हर चीज़ को फील करने के. एक तो वो है. व्हाट अबाउट अंदर रिलेटेड टू कीमो रिसेप्टर्स, कौन कौन से हैं जिसके नतीजे में ब्लड वेसल्स एकदम से डायलेट होती हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोथेलियम. ये याद रखें कि नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस नॉर्मल सिचुएशंस में बनने नहीं देता. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये हाईली इंपॉर्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड्स होता है. प्रोस्टोनाइड या प्रोस्टोसाइक्लिन स्पीस को कहते हैं, ठीक है. इट्स टाइप ऑफ प्रोस्टोसाइक्लिन. ये लोकल टाइप ऑफ लोको हार्मोन्स होता है, ठीक है. और ये क्या करता है कि जब हम एकदम से डायलेट करती है बिकॉज ऑफ द अंडरलाइन इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, चलें. तो आपसे कभी को पूछेगी कि भाई आप उसको कर रहे हैं व्हाई आई एम टैपिंग, ठीक है. टैपिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपके लोकल जो रिस्पॉन्स है नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्टिवेट, ठीक है. Towards the skin. I line up my cannula along the axis of the vein and note the axis there. I do not go either side, as again, that will increase the risk of rupturing one of the walls. I approach at a very low angle. It's about 5 to 10 degrees. I tense the skin and I insert my cannula like so. I don't rush this point once I'm through the skin. I advance the cannula very, very slowly, and again, along the axis of the vein, until I see a flashback up in the chamber of the cannula. When I see that, I'm level the needle out even further and advance up to 1 centimeter. At which point, I now can stop. I know that my needle and my cannula is in the vein. I use my pointer finger to advance the cannula, the plastic part of my cannula, across. I can now pause at this point because I know everything is there and in. I then take my tourniquet off and put pressure on the distal part of my cannula to avoid any blood rushing back. I then very slowly and controlled, I take the needle out and move directly to the sharps container. I take the IV bulb and I screw it on to this cannula, stabilizing it again with my other hand to check that the cannula is in the vein. Sorry, sir, शिकॉकी क्या कैलकुलेशन या प्रश्न या पॉलिसी के ये भी फर्स्ट टाइम जब कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट टाइम ऑफ प्री कैलकुलेशन दे यूज हैविंग एज ए कोडिंग हैविंग सम फ्लैश ऑफ एक्चुअली आजकल जो आपके पास में होगा साथ स्टॉक
शिफा में जो अभी आजकल आईवी इंट्रावेनस कैथेटर्स जो यूज़ हो रहे हैं उसमें जो आगे स्टॉपर्स आप यूज़ करते हो, लाइक आपने डिमॉन्स्ट्रेशन में भी देखा कि एक वाइट स्टॉपर जो आप लगाते हैं कैनोला के आगे, दैट इज़ नॉट हेप्रेनाइज्ड। एक येलो स्टॉपर होता है जो कि हेप्रेनाइज्ड होता है, वो अगर आप स्टॉपर आगे लगा रहे हो तो फिर आपको हेपरिन के साथ फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है कैनोला को। बस आप सिंपली नॉर्मल सलाइन से आफ्टर गिविंग मेडिकेशंस जो है वो फ्लश आउट करते हैं उसको। और हेपरिन में नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो एंटी क्लॉटिंग जो है वो रोल प्ले करती है। तो दैट्स द Twist off syringe, and I take it out to ensure that the cannula stays in its proper place. I'll now demonstrate some important principles when anchoring the skin. So firstly, I use the thumb of my non-dominant hand to stretch the skin. The important principle here is to stop the skin moving as my needle enters the skin and makes the step much smoother and less painful. It's very important to make sure my thumb is out of the way of the needle. If my thumb was here, on top of the knuckle ridge, I wouldn't be able to gain the right low angle because my thumb would be in the way. For that reason, I have my thumb below the knuckle edge, which allows me to lower the angle of this needle as much as is required. Between your thumb and middle finger, and insert the cannula below your hand. If the cannula is above your hand, it means that you won't be able to get the right angle necessary to advance, the right low angle is necessary. So the cannula below is always applied for this procedure. The pointer finger should always be out of the way, so it's not covering the thumb. This way you can observe a flashback of blood in the chamber as soon as that occurs. And having this pointer finger free also allows you to advance the cannula without using your other hand to do so. This makes the whole system much smoother and efficient as you put the cannula inside. Finally, I use my fifth finger, a very important part of stabilizing my hand to avoid the tremor. So say I have my patient using the middle finger to stabilize against any kind of structure, allowing you to advance through without a tremor. I'm now going to demonstrate some important cannula features. First of all, the cannula is a very, very sharp tip, which means it's easy to get access into the vein like so. But unfortunately, it also means it's very easy to go through the outside of the vein like so. Other aspect of this पॉइंटिंग फिंगर is मुझे that the पॉइंट करने वाला cannula है, is a पॉइंटिंग। relatively non-cutting upper bevel edge. So it's quite smooth. It means that when you go into the vein, it will flatten out. There's very little chance of you, even if you try very hard, to cut the upper surface of the vein. And that's why So this point is the bevel point. Okay? Bevel means the hole of the bore of the cannula. Okay? Go to the other side. Even if you were to angle say 10 degrees or 5 degrees in a very small vein, there's a good chance that you may go through the other side of the vein. Before you cannulate, it's important to identify the best vein. So when you're starting out, the big straight veins are probably the easiest ones, like this one here. It means it's less likely that you'll go through one of the side walls or the deep wall. It's also a good idea when you're starting out to look at bifurcations. And this is a good example. The vein goes this way and then bifurcates into two pathways there. If you go to the middle of that, it's less likely that the vein will roll to one side or the other. So for these purposes, I'm going to approach the vein just in the middle of his Gosman's hand here.
flashback in the blood flowing up. At this point, I take all the time I need and level out even further as I advance the cannula up to the center of the tongue. At this point, I then use my pointer finger to advance the cannula into the vein. I then take the tourniquet off and use my non-dominant hand, my thumb, over the distal end of the cannula to stop this bleeding. I then take my shaft and put it directly in the shaft container. Remember, I've got all the time in the world, I don't need to rush. There's not going to be any blood flowing back, and my cannula's in the vein safe, and now I need to secure it. I take my syringe with the IV valve and place it directly on the end of it. I then flush the cannula with normal saline to ensure that it is in the vein. I then secure tegaderm or upside with some sort of dressing over the cannula to ensure that it stays in the right position. And there you have it. अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि जैसे आईवी कम्युनिकेशन में भी हम टॉर्निकेट का यूज़ करते हैं और ब्लड सैंपलिंग में भी, ये कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक गाइडलाइंस है कुछ खास टेस्ट के लिए कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्निकेट को प्रेस कर दें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर ब्लड एक्चुअली? एनीबॉडी कैन टेल? जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्टडीज़ होती हैं ऑलवेज में, उसमें बड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। सीरम कैल्शियम और ख़ासतौर पर सीरम पोटेशियम लेवल जब आपने लेना हो नॉट मोर देन 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट, ठीक है? उससे ज़्यादा अगर आपने उसको कर दिया तो होगा क्या कि ब्लड में तो सीरम के पोटेशियम या कैल्शियम तो आएगा, बट इट विल शो द लोअर लेवल, ठीक है? और अगर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा और कर देंगे तो इससे ब्लड पूलिंग जो है नॉट ओनली इफेक्ट आपके टेंडन और नर्व्स को भी इफेक्ट करती है। लेकिन सीरम इलेक्ट्रोलाइट जब भी आपने लेने हो तो टॉर्निकेट टाइम इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है? ये टेक्निकल कुछ चीज़ें और 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपको अभी आप प्रैक्टिकली के लिए उसके लिए जाएंगे, दिस इज़ द एंड ओवर हियर, बट सम टाइम जैसे मैंने शो में इब्तदाइया में बात की थी कि फिजिकल असेसमेंट, सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप पेशेंट के पास जाते हो तो पता चलता है पेशेंट की स्किन बड़ी हेरी है, ख़ास तौर पे अगर आप यू आर गोइंग टू इंसर्ट या एडवांस कैनुला ओवर दिस वन हैंड्स, ठीक है? तो आपने अगर जब इसके ऊपर करना है तो अगर कोई ऐसी जगह है, ठीक है, तो जहाँ पे हेयर है, ठीक है, उसको आपने सबसे पहले रिमूव करना है, ठीक है? और सेकंड थिंग कि अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन की, बिकॉज मेरा मोस्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस क्योंकि एनेस्थीसिया में बहुत गुजरा है और ER में बहुत गुजरा है, तो सम टाइम पेशेंट कुछ आते हैं खासतौर पे OPDs में जो पेन की बड़ी कहते हैं, वो कहते हैं मैं पेन फ्री कैनुला लगाना चाहिए और हमने किसी स्पेशलिस्ट से लगवाना है। तो इन दैट सिचुएशंस में हम लोकल क्या यूज़ करते हैं, ज़ैलोकैन 1% जो है उसको लोकली इन्फिल्ट्रेट करते हैं, नॉट इनटू द ब्रेन बट सराउंडिंग स्किन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने जिस जगह पे करना है उसके स्किन के ऊपर, नॉट इनटू द ब्रेन, ठीक है? रिमेंबर, ठीक है? ज़ैलोकैन 1% जस्ट 0.1 इंसुलिन सिरिंज में लिया, लोकली इन्फिल्ट्रेट किया और 2 मिनट्स 3 मिनट्स वेट कर लिया, पेशेंट को बता दिया कि आफ्टर 2 to 3 मिनट्स आई विल कम एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस कैनुला, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्किन बहुत मैंने आपको जैसे पहले बताया बहुत थिन होती है और फैट इतना होता नहीं, ठीक है? और इंट्राडर्मल या जो एपिथेलियम होती है ये बहुत पेनफुल इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है? तो कैनुलेशन भी इसी तरीके से पेनफुल यहाँ पे होता है प्रोसीजर, तो उसके लिए क्या है फिर लोकली इन्फिल्ट्रेट करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन में बेस समटाइम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ योर स्किल्स, या आपकी स्किल मैनुअल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बट एनी हाउ सर्टन सिचुएशंस में हमें ये करना पड़ता है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ अवर वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन। नाउ विल गो टू द स्किल लैब एंड वी विल मेक प्रैक्टिस, ठीक है जी? चलें। एंड सर देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस बिफोर गोइंग टू द skill lab, so ma'am also will inform you. Everyone understand the video? Yes. You will see the checklist in the skill lab, okay? Do you have your skin manual skills book with you? Checklist. In groups you can do, you can divide, madam, 60-60? They have. Okay, that's fine. Chalo. Sir ji, I am... Thank you very much. ये बच्चे रिकॉर्डिंग वाला ना माइक के सामने Dear friends, thank you so much to spend your precious time to attend this workshop. Up below. Audience, we have another session, hands-on training that will be conducted in the skill lab. So first 3 group will be present there.
your first 3 groups will go there. यू आर मेंटेनिंग योर हैंड हाइजीन 5 मूवमेंट्स पॉलिसीज़ वो आप उसको फॉलो अप कर रहे हो जो मैंने नीचे भी बताई थी आपको. इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो यू कैन कैरी ऑन विद दिस विद दैट पॉलिसीज़ कंप्लाइंसेस. ठीक है, और अगर आपको हैंड रब की ज़रूरत हो तो हैंड रब्स यूज़ करने से पहले ऑलवेज मस्ट सी द के ये कौन सा हैंड रब है. अल्कोहल इट मस्ट बी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के आते हैं. इसमें जो कैटेगरीज हम हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए चाहिए होती है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. कौन सा चाहिए होता है हमें? आइसोप्रोपाइल, एंड इट मस्ट बी अराउंड 71%. एनीबॉडी कैन टेल कि अगर मेरे पास 60% हो 80% हो व्हाट इट विल हैपन कि अगर मैं वो यूज़ करूँगा तो क्या होगा बेटा? एक तो ये कि स्टडीज़ जब की गई देखा गया कि सबसे पहला फैक्टर है जो आपकी अपनी स्किन सेफ्टी. व्हाट इज़ योर एक्चुअली स्किन पीएच वैल्यू. ठीक है, जो आपकी स्किन की जो पीएच वैल्यू उसके साथ. ठीक है, एक ये, और सेकंड जैसे उन्होंने कहा कि नॉर्मल फ्लोरा की सस्टेनेबिलिटीज़ के एक होते हैं ट्रांजिएंट्स नॉर्मल फ्लोरा और एक होते हैं सिम्बियोटिक्स या एक परमानेंट या रेजिडेंशियल नॉर्मल फ्लोरास होते हैं. ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में आम तौर पे हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल होते हैं. ठीक है, बट वंस अगर हमारी स्किन ब्रेक डाउन हो जाए, इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाओ या कुछ इस सिचुएशंस में, तो देन दे कैन गो इन्फिल्ट्रेट या इंट्रोड्यूस इनटू योर डीप इनटू योर स्किन. ठीक है, तो 71% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यू मस्ट यूज़ इट. अच्छा, क्लिनिकल सेटिंग्स पे जब भी आप जाओगे यू विल सी द डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ यूजिंग अल्कोहल स्क्रब्स के. कुछ लोग डायरेक्ट लगे होते हैं यूँ करने के लिए. ठीक है, बट व्हाट यू डू बिकॉज इन क्लिनिकल सेटिंग्स में आप बिल्कुल क्या होते हो, आपने क्योंकि अबव द एल्बो आपने वो पहना होता है स्क्रब सूट्स, जो कि मैं आईसीयू वगैरह में या जब भी होता था तो हमारी प्रैक्टिस होती थी यहाँ तक. स्टैंडर्ड बेस्ड प्रैक्टिस यही है कि आपकी फुल ये नहीं होती जैसे अभी आप लोगों ने किया हुआ है. ठीक है, तो इट मस्ट कम्स अवर अबव योर दिस वन एल्बो. ठीक है, तो आपने वही फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर हैंड्स आर सॉइल्ड, ठीक है, यू मस्ट गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स. ठीक है, आपने वो वॉशिंग कितने मिनट्स के लिए होती है जो स्टैंडर्ड है WHO की गाइडलाइन 1 मिनट यानी 60 के लिए तो होनी चाहिए ना. वो एक यानी उसका एक साइकिल वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी दफ़ा करनी है, लेकिन बट ये कि आपने जो 1 साइकिल है वो 60 सेकंड्स में कंप्लीट होना चाहिए. और जो अल्कोहल के लिए बिकॉज उसमें जो वॉशिंग का कंपोनेंट है वो स्किप हो जाता है, तो दैट्स वाई यू कैन यूज़ जब वो आप यूज़ करो तो 40 to 60 या 30 to 60 यानी आधे मिनट में ये किया और आधे 1 मिनट में आपने हैंड वॉशेस कर ली. ठीक है जी, तो आप इसके डिफरेंट आप क्लिनिकल एरियाज़ में जाओगे तो डिफरेंट इन्फेक्शन कंट्रोल को मिनिमाइज़ करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं. एक टेक्निक ये है कि आप जो है यू डोंट यूज़ डायरेक्टली दिस हैंड्स एंड पुट लाइक दिस वे, ऑलवेज यूज़ लाइक दिस में. ठीक है, और हाँ, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि जब ये चीज़ें हों तो इनको पहले से जो है ना यूँ कर लिया, क्योंकि ऑल द टाइम जब आप किसी प्रोसीजर के लिए जाने लगे हो तो इसको बेहतर है, क्योंकि जितना ये चीज़ें टच करेंगी किसी एरियाज़ को इतना ये इन्फेक्शंस को साथ साथ टच एंड कैरी इन्फेक्शंस, टच एंड गो वाली बात है. ठीक है, तो इसको आप जो है इनसाइड कर लें. ठीक है, ठीक है, और इस चीज़ के मेथड्स को हमेशा अवॉइड करें प्लीज़. ठीक है, जो हम लोग करते थे, जो हमें स्टैंडर्ड थोड़ी सी चीज़ों को इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस इम्प्रोवाइज होती जाती हैं. व्हाट यू कैन डू, हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि ये दीवार के साथ हैंग हुए होते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कि ये दीवारों के साथ आप स्टाइल आता है. ये कहीं पड़े हुए नहीं होंगे काउंटर पे, ये आपको डेली आमतौर पे किसी रिसेप्शन पे शायद पड़े हुए इस तरह मिलें, लेकिन हॉस्पिटल में पॉलिसीज़ क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल की कि इट मस्ट बी हैंग्ड, इट मस्ट बी माउंटेड अगेंस्ट द वॉल. ठीक है, ये वॉल के साथ हैंग होने चाहिए, कहीं ऐसे नहीं पड़े हों. ठीक है, तो बीइंग एज ए नर्स इफ़ यू सी समथिंग इन एनी एरिया जो कि क्लिनिकल एरिया है, रिसेप्शन नहीं, मिसाल के तौर पे जो UR होते हैं, रिसेप्शंस होते हैं, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर होता है, वहाँ कोई किसी ने अपने साइड पे अपने ऑफिस के लिए रखा है, इट्स ओके. बट जहाँ पे पेशेंट्स हैं और आप हो और क्लिनिकल एरिया है, वहाँ पे ये नीचे मत पड़ा हो. इट शुड बी हैंग अगेंस्ट द वॉल. तो वहाँ पे हुआ उसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये कि इट इज़ अबव फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एरिया, ग्राउंड से अबव है, तो ग्राउंड से अबव जितनी चीज़ें होती हैं वो उतनी ज़्यादा यानी उसका ग्राउंड से दूर होने की वजह से उतने जम्स कम उसको कैरी लगेंगे, टच करेंगे. सेकंड थिंग कि जब ग्राउंड के साथ ये ऐसे हैंग हुआ होगा तो यू जस्ट डू लाइक दिस. ठीक है, तो अभी वो तो है नहीं, तो आई एम डूइंग अवर हेयर कि सपोज लाइक दैट कि आई एम डूइंग लाइक दिस, तो आपने ये किया जस्ट. ठीक है, और इसको ऐसे रख के
वही वो जो आपने मूवमेंट्स हैं, पहले तो यूँ किया पाम टू पाम, फिर डोर्सल टू पाम, ठीक है, यू नो ना दिस स्टेप्स, ठीक है, फिर इंटरलेस ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, फिर ये पॉइंट्स, फिर इंटरलॉकिंग और विद दिस थम्स, ठीक है, बैक एंड फ्रो, फिर इसको अगेन रिवर्स एंड ऑल दैट, ठीक है, फिर इसको सर्कुलर भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर इसको क्लैस्प अराउंड दिस वन, क्लैस्प अराउंड दिस वन। एक एडिशनल स्टेप क्या है कि जैसे ये, बट डोंट गो लाइक दिस अगेन, ठीक है, अपोजिट नहीं जाना, काम लाइक एंड ड्रॉप लाइक दैट, काम एंड ड्रॉप लाइक दैट, ठीक है, ये आपके हो गए। अब आपने ये आपके हैंड, आपने स्क्रब यूज़ कर लिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपके हैंड जो है वो एंटीसेप्टिक टेक्निक के होनी है। अच्छा, उससे पहले मे बी स्टैंडर्ड हर एक आदमी को कोई आदमी हो सकता है जिसको एलर्जी हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई एम प्रोन टू हैविंग द एलर्जी फ्रॉम दिस लेटेस्ट ग्लव्स, तो आई वुड प्रेफर टू यूज़ द डिस्पोजेबल ग्लव्स। मैम डिस्पोजेबल हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, नॉर्मल पॉलीथीन के दें, तो पॉलीथीन के ग्लव्स यूज़ करें। और बिगनर पे ना आई वुड एडवाइज यू डबल ग्लविंग किया करें टेक्निक। डबल ग्लविंग का फ़ायदा होता है वंस, बिकॉज आप जब आप फर्स्ट लेवल पे ट्रेनी एज ए नर्स होते हो, बेड साइड नर्स होते हो, तो बहुत चांसेस होते हैं प्रिक करने के, ब्लड स्प्लैश करने के। तो क्या होता है कि आपने कैनुले जब यूज़ कर रहे होते हो तो प्रायोरिटी इज़ फर्स्ट, इफ़ यू आर सेफ द पेशेंट इज सेफ, ठीक है, ठीक है। तो आमतौर पे क्या है कि अब जब मैंने इसको अल्कोहल बेस लगा लिया, अब ये सोल्यूशन मेरे हाथ पे लग गया है, उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप इसको पहले ड्राई करो अल्कोहल को। एनी हाउ अगर वो नहीं है तो हम लोग क्या करते थे कि नहीं वो एयर ब्लो करोगे, दैट इज़ फिल्टी टेक्निक, वो गुड नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो एयर आप अपने माउथ के जर्म्स है ना इसके अंदर ब्लो आउट कर रहे हो, ठीक है। किधर है जी दूसरा, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, नो प्रॉब्लम, इतनी हरी भरी कोई नहीं होती कि बंदा वो करना शुरू कर दे। तो इफ़ यू आर रिलैक्स्ड द पेशेंट, बस इसको ख़त्म करते हैं, बस एक दफ़ा डिमो, हाँ मेरे ख्याल में 20 मिनट इज़ इनफ। नहीं ओवरऑल इन सब ने करनी है ना, आप इन सबको मौका किधर आप में से हर एक को आधा घंटा, तो पूरे एक ग्रुप को, तो हर एक को नहीं, एक ग्रुप को तो आधा घंटा मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू योर साइज़। चले मैं थोड़ा सा फास्ट अप करता हूँ ताकि इनको ना, अकॉर्डिंग टू योर साइज़ ही, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहता, ठीक है। आपने वो पहन लिया, ठीक है, आपने वो चीज़ें कर ली। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या बताया था, ये चीज़ें आपकी पेशेंट के अराउंड द टेबल पड़ी हों पहले से, ये तो भी मैं साथ ऐसे दिखा रहा हूँ ना, लेकिन ये चीज़ें पहले से हुई हो, आपकी जर्नल ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट पहले से हुई हो। हैंड को अगर यहाँ पे बाल हैं, अगर इधर ही लगाना है तो उसको यहाँ से उसको वाइप आउट करना है। वाइप आउट किसके साथ करना है, रेजर के साथ, ठीक है। पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो ज़ैलोकेन का वही मैंने लोकली जो बताया वो देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या, वही सिलेक्शन ऑफ द वेन, ठीक है। इससे पहले नीचे अगर वो आम रेस्ट के नीचे अगर आपने मैकिनटॉश या कोई चीज़ नीचे रखनी है, बेटा आप लोगों को नज़र आ रहा है सब, आप तो पीछे खड़े हो, आपको तो नज़र नहीं है, आप इधर आओ, आप कुछ लोग बैठ जाओ ना, इसके फ्रंट पे बैठो और कुछ पीछे खड़े हो जाओ। आप ये चेयर लें बेटा, ये चेयर उधर लेकर आओ, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। टॉर्निकेट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है। और बेस्ट मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑलवेज रिमेंबर, पेशेंट के पास बैठ के काम कैनुलेशन प्रोसीजर करें, नेवर एवर स्टैंड और खड़े होकर इस तरह के काम करें, ठीक है। तो जी, और साथ में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि कैनुला या कोई भी चीज़ है, मैंने कैनुला रखा हुआ है, ठीक है। और वो आपका होना चाहिए क्या, डस्टबिन, ठीक है। डस्टबिन तो नहीं है मैं फ़िलहाल, बेटा आप लोगों को समझ तो आ रही है ना कुछ चीज़ों की, ठीक है। मैं क्रिटिकल कुछ बस पॉइंट बोलूँगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ हैंड से आम जब भी आप सेलेक्ट करो तो पहले पेशेंट को कहो कि पहले थोड़ा सा वो इस चीज़ को खुद से करे। कैनुला टर्निकेट एकदम से फ़ौरन नहीं बांधना, टर्निकेट उस वक्त बांधना है जब पेशेंट थोड़ा सा क्लेंच करके फिस्ट बना के थोड़ा सा इसको स्ट्रेंगुलेट करके वो करे, फिर उसके बाद आप करें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आपने कुछ प्रैक्टिस ये हैं कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आप यहाँ से जस्ट
2 इंच, यानी ये आई डोंट नो कि 1 इंच है या 2 इंच है, लेकिन 2 इंच है, इतना इससे ऊपर जाके यहाँ पे आपने इसको बांध देना है, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये कि एटलीस्ट वेसल्स को डायलेट होने में और ब्लड को फिल होने में थोड़ी स्पेस मिले ना, टाइम मिले। आप अगर एरिया यहाँ से रिड्यूस कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे, तो ब्लड को यहाँ से अगर जब आप डालोगे तो वेंस को, वेसल्स को डायलेट होने में टाइम और फ्लश होने में टाइम स्पेस नहीं मिलेगी। आपने क्या किया, इसको यूँ कर लिया, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बस इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जब आप, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पेपर में भी स्किल्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखा जाता है, वो ये होता है कि नॉन टच टेक्निक में यही है कि आपने वंस अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर आपने डायरेक्ट उसके ऊपर हाथ नहीं रखना। सर जो शॉप में होते हैं ना पेशेंट, तो पेशेंट थिएटर में, तो उनको फिर नॉर्मल सलाइन के अंदर डाइल्यूट करके तो फिर उनको वो देते हैं। बस तो एक लेकिन अगर आपको येलो कैनुला भी ना 24 का भी फ्रेश लगा हुआ है तो वो ट्रांसफ्यूजन हो जाती है। इन केस के अगर बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट को शॉक में नहीं है या कोई ज़्यादा वो कंडीशन खराब है। इसमें पॉइंट लिखा है कि रेडियल और अनर आर्टरी की हमने पेटेंसी चेक करनी है, तो वो तो हम जब ए भी चीज़ देते हैं तब उस वही पे हम चेक नहीं करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, कौन से वाला सेंस ही नहीं बनता किधर? प्रिपरेशन में ये सेकंड तो एल एंड टेस्ट हम करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए करते हैं। अप्लाई प्रेशर टू ओक्लूड ब्लड वेसल्स। आईवी में आपने प्रेशर को अप्लाई करना है वाज़िया तौर पे वेन को देखने के लिए। इसका मतलब ये है, आर्टरी का जिक्र किया। ये इसको लगाए ना, मैम इसमें ना रेडियल और अनर आर्टरी की बात सिर्फ हुई है, और आर्टरी का तो नहीं, अप्लाई प्रेशर ओवर दी। आर्टरी को तो आप कैलकुलेट नहीं करते। रेडियल जिस तरह मैम आप एल जब एंड टेस्ट कोई होता है, एबीजीज वगैरह लेने हो या इस तरह की आपने करनी हो तो फिर आप आर्टरी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने एबी फिस्टुला बनाना हो तो आप तो अक्लूड बोथ वेसल्स वो होता है इसमें ना जिस तरह एल एंड टेस्ट होती है, इस तरह ये रेडियल और अनर को हमने प्रेस किया हुआ है ना, इस तरह यही बात हो रही है ना इसमें। अंडर आर्टरी, ठीक है। आपने टूर्निकेट बांधा है, ठीक है। प्रेशर, ये प्रेशर जो होता है ना, इसको वो कह रहे हैं कि आपने इसको प्रेशर को अप्लाई किया। रेडियल और अनर आर्टरी तो यहाँ पे यानी एक हो सकते हैं ना, एक एविडेंस हो सकती है जब हम एल एंड टेस्ट करते हैं उसमें करते हैं, लेकिन हम ये एविडेंस से चेक करते हैं जब आर्टरी यहाँ पर वेन में लगा रहे हैं तो कभी आर्टरी भी प्रिक कर देते हैं। मैम ये पॉइंट इससे निकालना चाहिए, इसके लिए वैलिड नहीं। क्या ये आर्टरी वाला पॉइंट इसमें ठीक चलो चलो इसको फिर डिस्कस कर लेते रेडियल हैं। आर्टरी पे प्रेशर आएगा तो आपकी वेन ऑटोमेटिकली उसमें फिर वो प्रेशर आएगा और आपको फिजिबल होगा। वो तो एल एंड टेस्ट की बात कर रही है, ये तो एल एंड टेस्ट में इस तरह होता है। वो तो आपने वो करते हैं ना टेस्ट, उसमें एबीजीज में भी, और वो आपने फिस्टुला वगैरह बनाना हो तो उसमें भी आप एक टेस्ट होती है उसमें उसको वो और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं, आपको क्या है कि प्रॉपर मतलब आपकी हैंडलिंग उस तरह से नहीं है, आप प्रैक्टिस में हो, तब ये करो, यहाँ पे स्टॉपर लगाने से पहले फ्लश कर लो। ये मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बेटे? आप फ्लश करो, स्टॉपर को लगाने से पहले फ्लश कर लो, ठीक है। अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते, आपको ये है कि अगर आप हाथ हटाओगे या ये इसको इंसर्ट करने से पहले ही ब्लड निकल आएगा, तो आप ये करो, फौरन से स्टॉपर लगा दो और फ्लश को आप ऊपर से करो, जैसे आप लोग को वीडियो में दिखाया कि उन्होंने ऊपर से यहाँ पे करके और फ्लश कर लिया, ठीक है। फ्लश आपने कितना डालना है? 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 ml, सॉरी, ठीक है। आपने डालना है ताकि ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि अगर पता आपके पास, आपको नहीं पता कि पेशेंट के पास कौन सी उसमें आया है, मे बी आपके पास पेशेंट जो है वो किडनी डिजीज़ के साथ वाला है, आपको आईवी कैनुलेशन का बोला, तो उसके लिए थोड़ा सा भी फ्लूइड जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है, मे बी वो डायलिसिस के लिए भी आया हो उस लिहाज से, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ 2 to 3 ml ही जो फ्लशिंग है वो करनी है, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, देन जो आपके पास टैगरडम देखी हुई है, अगर इधर हम फ्लश कर सकते हैं तो इधर हम फिर मेडिकेशन क्यों नहीं करते? किधर? इधर मेडिकेशन। अच्छा बेटे, इसका ये है गुड पॉइंट, जो यहाँ पे है, हम अगर फ्लश तो है क्या है, हमारा नॉर्मल स्लाइन लाइक वाटर है, ठीक है, ऐसे ही है ना, लाइक वाटर है। लेकिन जो मेडिसिन है, देखो मेडिसिन आपकी किसी भी कंसिस्टेंसी की हो सकती है, अगर आप ऊपर से उसको करोगे मे भी आपकी वेन ख़राब हो जाए, ठीक है, मे भी आपकी क्या हो, वेन ख़राब हो जाए। तो इसलिए हमें करते हैं कभी भी डायरेक्टली ऊपर से नहीं देते, हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से ही देना और विद डाइल्यूशन ऑफ 10 और 20 ml
नॉर्मल स्लाइड ऐसे ही करते हैं ना। कोई क्वेश्चन तो नहीं बेटा यहाँ तक आप लोगों को? सबको सही समझ आ रही है? कैलकुलेशन की हुई है वैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस पे ऐसे ही की है या समथिंग डिफरेंट? ऐसे ही किया, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। अगर आप ऐसे ही करते हो जिसको बार बार क्या है, हेपरीन जो है ना कितनी नहीं होती, मतलब एक ऐसा पेशेंट आया हो जिसकी क्लॉटिंग बार बार होती है, जैसे कि डेंगू या DIC के पेशेंट ब्लड क्लॉटिंग, तो हेपरीन कितनी देनी चाहिए? अच्छा हेपरीन का बेटे तो हम केनोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जो हल्की क्लॉटिंग हो जाएगी तो उस पर आप थोड़ा सा पॉइंट 1 या पॉइंट, इसकी बहुत कम यूनिट होते हैं, मुझे यूनिट इसके याद नहीं, लेकिन बहुत कम आप देते हो, ठीक है? क्योंकि हेपरिन आप विदाउट इंस्ट्रक्शन किसी पेशेंट को नहीं दे रहा। Now the procedures and how we will perform this. First of all, we collect the articles in the tray or in a side, and we will put this tray at the side of the patient. और then हम क्या करेंगे कि एक साइड पे रखा और हमने अपने आर्टिकल्स जितने भी हैं वो हमने रिमूव कर दिए। जैसे मैंने रिंग्स पहने हुए हैं तो मैंने रिंग्स अपने जो है वो रिमूव करने हैं। क्यों हम रिमूव कर रहे हैं? बिकॉज हमने जब इन्फेक्शन किस तरह से हो सकता है, ओके ये तो हो ही नहीं रहा होना, अच्छा जी हमने इसको कर दिया, बस सही है, हो गया, इट्स ओके। हमने इसको अप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने इसको स्क्रब को अपना अप्लाई कर लिया और फिर हमने सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद क्या करना है, थोड़ी देर इसको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है? जब हमने ड्राई कर लिया फिर हमने इसमें से अपने ग्लव्स जो हैं वो एक पेयर ग्लव्स निकाला और इसको वी विल डन द ग्लव्स। चलो ये तो अजीब ही ग्लव्स है ना। ब्रेसलेट नहीं रिमूव कर रहे, ब्रेसलेट रिमूव करना चाहिए लेकिन ये है कि अभी अंदर आ रहा है तो फिर खैर है। हाँ क्या है, चुप करो ना। Okay. Now, what we will introduce yourself to the patient. आप अपने आप को पेशेंट के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप उससे क्या बताएंगे कि डियर सर और मैम, आई एम मिस कौसर अजीज़ एंड आई एम योर नर्स फॉर टुडे, और टुडे इज़ योर planning for the IV medication and I will perform प्रोसीजर ऑफ कैनलाइजेशन टू यू, ठीक है? फिर वो अपने कंसेंट दे देंगे आपको, आप उनसे कंसेंट ले लेंगे। दैट कैन बी रिटन कंसेंट और दैट कैन बी वर्बल कंसेंट। वो आपको कंसेंट दे देंगे, आपने उनसे बात कर ली। उसके बाद क्या करना है कि आपने जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, हमने उनका जो भी अपर हैंड, एक मतलब डोमिनेंट हैंड है, नॉन डोमिनेंट हैंड, हमने नॉन डोमिनेंट हैंड जो है उसको देखना है। टूर्निकेट जो है अप्लाई करेंगे हम। हमने क्या पढ़ा था, ज़रा मुझे बताना शुरू कर दें आप लोग। टूर्निकेट हम 3 to 4 सेंटीमीटर ऊपर बांधेंगे, ठीक है? और कैसे, और कैसे हम बैंड सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट होकर टेबल और माउस। ठीक है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको डोमिनेंट जो है वेन्स जो हैं प्रेशर से हमने इनको क्या करना है, प्रोमिनेंट करना है, ठीक है? प्रोमिनेंट हो जाएंगी वेन। उसके बाद हम अल्कोहलिक स्वैब लेंगे। यहाँ से हमने अल्कोहलिक स्वैब कहाँ पड़े हुए हैं, ये वाले। क्रॉस किया हमने इसको। 4 5 5 अभी हमने स्टार्ट किया। अच्छा, इससे पहले आपका एक स्टेप ये था कि आपने पेशेंट का आर्म जो है या लिम्ब जो है, ज़रूरी नहीं कि हम पेशेंट के आर्म पे ही कैनुला अप्लाई कर रहे हैं, हम पेशेंट के
लेग पे भी कैनुला अप्लाई कर सकते हैं या फुट पे भी हम कैनुला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमने पोजीशन जो है पेशेंट को देनी है, पोजीशन में हम क्या करेंगे कि जो अगर पेशेंट लेटा हुआ है, बेड केस है, तो हम उसके आर्म के नीचे एक पिलो को रख देंगे, ठीक है, स्टेबल करने के लिए। और अगर वो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो हम क्या करेंगे, आर्म रेस्ट जो है, चेयर रेस्ट जो होती है, उसके साथ उसका हाथ रख देंगे और उसको बताएंगे कि आप क्या है टूर्निकेट अप्लाई कर दिया और अब जो है ना मूव करें अपने हाथ को, क्लच को, फिस्ट को ऑफ करें, ऑन करें इस तरह से। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने पैल्पेट करना है, वेन अगर पैल्पेबल है, उसके बाद आपने एक स्पिरिट स्वैब उठा लिया, उसके बाद आपने जेंटली उस एरिया को किस तरह से करेंगे, पहले इनर आउटर इनर करेंगे कि इनर टू आउटर करेंगे? सर्कुलर मोशन वो तो हम आइस में करते हैं, रोट करेंगे ना ताकि सर्कुलर करना है। ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे? ऐसे करेंगे आप? ओके, चलो ऐसे कर दिया। तो इससे कैसे पता चलेगा कि आपने आउटसाइड टू इनसाइड करके दोबारा से आपने कर दिया? आउटर जो है पहले हम दरमियान में जहाँ पे जगह है वहाँ पे प्रोमिनेंट पॉइंट है, वहाँ को हमने वाइप आउट कर दिया। फिर उसके बाद हमने कैनुला जो है, अगर हम देख रहे हैं कि ये वेन प्रोमिनेंट हो गई है, जैसे वेन अगर प्रोमिनेंट है तो इसमें हमें पता चलना चाहिए कि हमने कौन से बोर का कैनुला जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। और हम बोर की सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैनुला की साइज़ की हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम देखेंगे कि हमने इसको इंट्रावीनस जस्ट क्लियर फ्लूइड देना है, जैसे रिंगर देना है, या 5% दे रहे हैं। अगर हमने रिंगर और 5% देना है तो तब हम क्या करेंगे, अपने पेशेंट को सिंपल 22 का जो नॉर्मल सा कैनुला है वो हम पास कर देंगे, क्योंकि वो कैनुला का फ्लूइड जो है वो अंदर स्टिक नहीं करेगा और मेडिकेशन उसके अंदर ऐसी कोई ख़ास नहीं है और वो फ्लो के साथ चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने देखना है कि अगर हमने इसको TPN दे रहे हैं, ठीक है, TPN वैसे जो है बिग बोर कैनुला उसके लिए यूज़ करेंगे, और या फिर हम CVP लाइन जो है वो यूज़ करते हैं। बिग बोर कैनुला में हमारे पास कौन सा होता है, 18 गेज का आ जाता है, दिस इज़ आई थिंक सो 18 गेज, एक 18 गेज आ जाएगा और 16 और 14 गेज के कैनुले आते हैं, ठीक है। इसका हम देख लेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट उस टाइम के लिए क्या है और हमारे पास जो अवेलेबल वेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसके मुताबिक हमने कैनुला की सिलेक्शन कर ली। अब जो है बिवल साइज़ जो है, थोड़ा सा इसके लिए आपको बता दूं कि बिवल साइज़ जो है इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, ठीक है ना, सर ने थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया था। तो जब हमने कैनुला ऑलरेडी जैसे ये पड़ा हुआ है, इस तरह के कैनुला अगर हमने पेशेंट को कैनुलाइज करना है, क्लिनिकल एरिया में बैठे हुए हैं, तो ऐसे ओपन कैनुला जो है वो आप पास नहीं करेंगे, ठीक है। आप पैकिंग का कैनुला जो है वो खोलेंगे और किस तरह से, जिस तरह से इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से आपने इसको ऑफ़ किया, फिर उसके बाद जेंटली इसको रिमूव किया आपने कैनुले को, एक डस्टबिन में या अपनी किडनी ट्रे में आपने इसको रख लिया। अब कैनुला का हमने देखा कि इसकी कैनुलाइजेशन करते हुए हमें पता होना चाहिए कैनुला जो है ऐसा तो नहीं है कहीं से ब्रेक हुआ हो। अगर ब्रेक हुआ है या लीकेज हो रही है उसकी, तो हम देखेंगे कि अगर ब्लड इसके थ्रू नीचे आ रहा है और वेन भी प्रिक हो चुकी है और हमारा प्रिक जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो हमें क्या मतलब हमारा कैनुला अगर इटसेल्फ ठीक नहीं था तो वो तो लीक हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें इससे प्रिक करने का पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसको अच्छे से वाइप कर लिया हुआ है ना, वाइप करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको मेजर करना होता है। हमने ये कुछ ऐसी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो हम क्लिनिकल एरिया में 28 साल से करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कैनुला पास करने से। अब ये देखिए कि जब मैं इस पूरी नीडल को इधर मेजर करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये बोनी प्रोमिनेंट पे जा रहा है ना, तो ये मुझे यहाँ पास नहीं करना चाहिए, ठीक है, हालांकि ये बहुत क्लियर वेन है। फिर मैं देखूँगी कि अच्छा यहाँ पे देखती हूँ वेन, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है कि एनाटमी में मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे जो कौन सी थी भाई वेन्स, यहाँ पे नहीं डॉर्सल थी, नहीं डॉर्सल भी नहीं थी, अच्छा जो भी थी, चले मेटाकार्पल थी। मेटाकार्पल वेन जो है उसके लिए भी ये कैनुला जो है वो थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है, ठीक है। फिर मैं इसके हैंड की तरफ जाऊंगी। अब ये वाली जो वेन मुझे लग रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट है और अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ,
कैनोला की जो लेंथ है वो भी इसके मुताबिक चल रही है। अब जब मैंने इसको पास करना है कैनोले को, तो फिर मेरा क्या पर्पस कैसे होगा? अब मैं दोबारा से ये वाला पूरा तो नहीं स्टरलाइज किया था, पहले मेरा ये फोकस था, अब मैंने इसको फोकस कर लिया, तो इसको मैंने दोबारा से हमने वाइप आउट कर लिया। कुछ चीज़ें हमने ना पहले बिफोर द प्रोसीजर करके रखनी होती हैं। लाइक अगर हमने इस ये ट्रे बनाई है तो इसमें फ्लशिंग फ्लूइड जो है वो हमें पहले से बना के रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने अभी नहीं बनाया हुआ तो डजेंट मैटर, हम बीच में बना लेंगे। चलिए जी, इसको हमने पहले स्टरलाइज़ किया, सारे के सारे को स्टरलाइज़ कर लिया हमने, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने इसके साथ मेजर कर लिया कि ये कितने तक मेजर हो सकती है। अब हमने इसकी स्लीव, जो मैंने आपको उसमें एक डाला हुआ था वर्ड स्लीव, जो है रिमूव कर लिया इसको, यानी कि इसकी कैप को मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं देखा कि अब हमारा ये क्लिनिकल में हमारा यही काम होता है कि हम इसको पैल्पेट करते हैं। ऑलरेडी हमें नज़र आ रही है वेन, तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको जेंटली हमने प्रेस किया और इंसर्ट कर दिया इसको, ठीक है। फिर अब ये जो है कैनोला यहाँ तक जब जाएगा कैनोला, तो मुझे पता चल जाएगा कि कैनोला जो है, एक तो इसकी सॉफ्टनेस से मुझे पता चल जाएगा कि कैनोला डायरेक्शन उसकी बिल्कुल ठीक है और उसने प्रिक कर दिया है वेन को। वो कैसे मुझे पता चलेगा? एक तो यहाँ से थोड़ी सी हिंट मुझे मिल जाएगा, जब यहाँ पे मैं देखूँगी तो यहाँ बेवल में ब्लड होगा थोड़ा, ठीक है। तो जब बेवल में ब्लड होगा तो मैं इसको, ये ऑलरेडी अटैच है, तो इसको मैं हटाऊंगी भी तो ब्लड जो है बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक बात ये। दूसरा, जब मैं इसको स्टिलेट को निकाल रही हूँ, इसको नीडल को मैं निकाल रही हूँ यहाँ से, तो इस सारी पाइपलाइन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको जब अब हमने इतना निकाल लिया तो इस पूरे को हमने इंसर्ट कर दिया इनसाइड, ठीक। अब ये कैनोला जो है प्रॉपर डल चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ना है, पहले ये ओपन कर देनी है मैंने, ठीक है। टूर्निकेट हमने ओपन की, फिर हमने यहाँ से प्रेस किया टिप ऑफ द कैनोला, जो मैंने बताया था आपको कि टिप ऑफ द कैनोला हमने इसको थोड़ा सा प्रेस किया और वाइट जो है आपका बटन आपने इसको इसके साथ लगा दिया, ठीक है। ये आपका कैनोला जो है डल गया। अब आपने इसको किस तरह से एडजस्ट करना है, पेटेंट आपने किस तरह से रखना है, ये हमारे पास है। ये तो जिंक ऑक्साइड है, ये हमने खोलनी नहीं है, हमें उन्होंने बताया कि आपने रिमूव नहीं करनी है इसमें से। तो एडजस्ट हम किससे करेंगे? कोई भी अगर हमारे पास टेप है, जैसे कहते हैं पेपर टेप हो जाएगी, उसके साथ हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। पेपर टेप के अलावा हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, स्टिकिंग प्लास्टर होते हैं वार्ड के अंदर, वो हम लगा देंगे। तो ये क्या चीज़ है? ट्रैगोडर्म ड्रेसिंग है, लेकिन हमने खोली, ओपन नहीं करनी है, नहीं ओपन नहीं करनी है। अच्छा ये है, और सीजर नहीं है हमारे पास अभी। सीजर चाहिए, सीजर कट, हाँ कर दो, कट करना है तो कट कर दो। चलिए जी, अब देखेंगे आपके, अगर मैंने इसको फर्स्ट मैंने इधर एडजस्ट किया इसको, ठीक है। सेकेंड हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। ओए खैर है, बस इतना बहुत है, बस एक और लगा देंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे कि एक सिरिंज हमने ली, जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है फ्लूइड, ऑलरेडी ये प्रिक है। कितना फ्लूइड था जो हमने बताया था? 2 to 5 2 to 5
वो 5 to 10 प्रेशर था। कोई ला फातिमा कहाँ इस काम के लिए ठीक है ना। चलिए ओके, अब ये हमारे पास आ गया कि हमने इसको खोला, वो ऊपर से टिप से हमने इसको पकड़ा, टिप से इसको ऐसे प्रेस किया थोड़ा और इसके साथ अटैच करके हमने इसको ये फ्लश कर दिया। ठीक है ना, अंदर से बाहर ही आ रहा होगा, आ रहा होगा। थोड़े देने चला गया कहीं पे। ये हमने कैनुला पास कर दिया। ठीक है ना, नहीं ये पैर से नहीं करता है। हाँ ना ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लिया और बस डेट लिख दी, टाइम लिख दिया। एक पेपर अगर है हमारे पास उसको हमने फिल कर दिया कि हमने कौन सी डेट पे पेशेंट को कैनुला पास कर दिया था।